नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता अमोमी शेफ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं विश करती हूँ कि आप लोग सब हमेशा अच्छे रहें एंड एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे फैमिली के वेलबींग के बारे में कभी भी अपने विशेस में ज़रूर करेंगे। तो इसी अच्छे वर्ड्स के साथ आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी है एक बेकिंग का रेसिपी। ये है ऐसा रेसिपी जो आपको बहुत मदद करेगा जब आपके घर में राइप बनानास होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में हम बनानास लाते हैं और बनानास फिर ख़त्म नहीं होते। यस, होता है, आपके घर में भी होता है। और बनाना क्योंकि बहुत ही जल्दी पेरिश हो जाता है, एक पेरिशेबल फ्रूट है, वो बहुत जल्दी ही वो राइपन हो जाता है। तो हम सोचते रहते हैं कि बनाना को यूज़ करके हम क्या करेंगे। तो आज का ये जो रेसिपी है वो कभी ना कभी आपको मदद ज़रूर करेगा। और ये रेसिपी जो मैं बेकिंग करूँगी, एक केक बनाऊँगी बनाना के साथ। ये एक शुगर फ्री रेसिपी आप इसको बोल सकते हैं। और मैं इसको ओवन में बेक नहीं करूँगी सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू would be able to do this, and this also will be an eggless cake recipe. But in case अगर आप eggs use करते हैं, so you can use one egg in this recipe and reduce the amount of baking powder in this, okay, because I'll not be using any egg over here. So accordingly I will use the amount of baking powder and baking soda. But if you use egg over here, then just reduce baking powder to half the amount, okay. So anyways, so whatever this recipe, what I'll be doing today is an eggless banana cake recipe, and this will be sugar free. Sugar free to some extent. Why? Because एक्चुअली इसमें मैं 2 स्पून्स कुछ डालने वाली हूँ जिसमें शुगर है, लेकिन दैट पर्टिकुलर ingredient in this recipe is totally optional. That is totally optional. अगर आप उसको इस रेसिपी से डिलीट कर देंगे अपने हिसाब से जब आप बना रहे हैं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर रेसिपी, दैट इज़ फ्रूट जैम, आई एम गोइंग टू यूज़ फ्रूट जैम ओवर हियर, अगर आप वो फ्रूट जैम को यहाँ से हटा देते हैं इस रेसिपी में, तो दिस रेसिपी इज़ टोटली शुगर फ्री। तो चलिए बातें बंद करते हैं और जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हमारा ये आज का रेसिपी, बनाना केक। Okay, so first what I'll do is I have just roughly broken the banana, and using little milk I'll just make a smooth paste of this. ओके तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये होल व्हीट आटा है। दिस इज 1.5 cups, एंड येस, लेट मी फर्स्ट टेल दैट मेरा जो मेजरमेंट कप है दैट इज 150 grams. ओके, दैट मेजरमेंट कप इज 150 grams. उसमें मैंने लिया है ये होल व्हीट आटा। दिस इज 1.5 cup. दिस इज कर्ड हाफ कप, milk half cup, oil half cup, honey, this is 50 ml, and this is the mixed fruit jam. This is 2 spoons of mixed fruit jam. This is optional, you can totally eliminate it from your recipe. Okay, then this is the 2 bananas. Okay, you can see that the banana is ripened. और देखिए ये जो मार्क्स है, ऐसा जो बनाना है इसको यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। इसमें इसको डाल दिया ना तो इसमें इतना स्वीटनेस होता है कि वी नीड नॉट ऐड लॉट मोर ऑफ स्वीटनेस। इसलिए मैंने एक हेल्दी इंग्रेडिएंट लिया है इसमें, हनी, टू जस्ट have a complement between these two. Okay, so the more the riper is your banana, the sweeter it will be. Okay, so these are 2 bananas. Then I have taken pink Himalayan salt, I have taken baking powder, baking soda, and pineapple essence. Okay, to just increase the fruitiness I have used this fruit jam and I have used this pineapple essence. Okay, so let's begin quickly. I've taken a mixing bowl, and into that I will be adding oil,
Okay, I'll be adding oil. Then I'll be adding honey. Okay, so I've added oil, honey, done, and I'll be adding this banana puree. This is puree of 2 bananas. Okay, and I'll be beating this. Okay, so I have taken oil, honey and banana puree. Okay, so this is nicely mixed. At this point of time, I'll be adding this fruit jam. As I said, this is optional, but just this gives a nice fruity flavor. So that's why you can see I have taken pineapple essence, I have taken this jam. I'll beat this too. Okay, at this point of time, I will put pineapple essence. I am putting 1 teaspoon of pineapple essence. Okay, I'll beat it too. Okay, at this point of time, I'll just add a pinch of pink Himalayan salt. Okay, we'll mix this also. I'll just scrape off the sides. Okay, done. Now what we'll do is we will add curd. I'll beat this also.
Done. Now I'll just scrape off the sides. Okay. I'm scraping off the sides. And now I'll add the dry ingredients. Okay, so I'm taking this whole wheat आटा, half and half डालेंगे. Okay, then I'll be putting baking powder. I'll add baking powder, 1 teaspoon of baking powder. I'll add half teaspoon of baking soda. Okay, and I'll sieve this. ओके, उस साइड मैंने जिसमें हम बेकिंग करेंगे उसको ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए चढ़ा दिया है. ऑलवेज रिमेंबर, एक बार केक बैटर बन जाए उसको ज़्यादा देर तक रेस्ट मत करवाइए. अगर वो ज़्यादा देर तक रेस्ट करेगा फिर अच्छे से बेक होके नहीं निकलता. ओके, सो वी हैव पुट आवर ड्राई इंग्रेडिएंट्स और इसको हम अभी ग्रेजुअली बीट करेंगे. And putting milk. I'll scrape off the sides. Okay. And I'll add this milk and again we will beat this. Okay, so it's totally ready. I'll just scrape off the sides. Wash my hand and I'll scrape off the sides. मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है तो मैं उसमें अब हमारा ये केक बैटर को डाल रही हूँ. इन केस यू डोंट हैव अ सिलिकॉन मोल्ड, यू कैन टेक एनी केक टिन दैट यू हैव एंड यू कैन grease it. Okay, you can grease it with oil. फिर उसमें parchment paper लगा दीजिए as per the size of the cake tin, and then you can place that in your oven or anywhere that you are
baking it. Like I'll be baking it in this big patila. Okay, so this is the cake tin that I have. This is the square cake tin that I am having. मैं इसमें अभी ये केक बैटर को डाल दूंगी. ओके, तो हमारा केक बैटर को मैंने डाल दिया है. डन. We have to just tap it so that in case any air bubbles are there, वो remove हो जाए. You can also do one thing. Just take a knife or a fork and ऐसे कर दीजिए, तो in case कोई air bubble होगा तो वो निकल जाएगा. ओके, यू नो समटाइम्स मैं ना इंटेंशनली एयर बबल्स को रख देती हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टेक्सचर जैसे आता है, एक बहुत अच्छा डिज़ाइन जैसे आता है, इसलिए कभी कभी इंटेंशनली छोड़ देती हूँ. वो एक कैसे बबल्स बबल्स के जैसा एक इफेक्ट आता है उसमें बेक होने के बाद, तो इसीलिए छोड़ देती हूँ. ठीक है, तो एनीवेज ये हो गया. आप इसमें चाहें तो कोई भी आपके मर्जी का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. देखिए, एक सिलिकॉन मोल्ड है इसलिए इसके नीचे मैंने एक प्लेट रखा है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा बेस मिल जाता है इसको. ओके, तो एनीवेज अगर एक दो बबल्स हैं भी तो मुझे अच्छा लगता है, मैं छोड़ देती हूँ. आप लोग अच्छे से टैप करके फिर इसको अपने प्री हीटेड बेकिंग प्लेस में ले लीजिए, चाहे वो ओवन है या. ओके, तो देखिए मैंने इसमें हमारा केक को डाल दिया है और हम वेट करेंगे 30 मिनट्स एंड देन विल पोक एंड चेक वेदर आवर केक इज रेडी और नॉट. सो देखिए हमारा ये केक, बनाना केक बन के बिल्कुल तैयार है और मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है इसके ऊपर, थोड़ा सा whipped क्रीम के साथ और जेम्स चॉकलेट एंड कलरफुल वर्मिसेलीज लगाया है मैंने और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है. तो इसी तरह से आप लोग भी अपने घर पे ऐसे हेल्दी केक्स बनाइए. उसको डेकोरेट करे ना करे कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी केक्स, अच्छा खाना बनाइए और उसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ एंजॉय करिए. एंड विद दिस स्वीट वर्ड्स आई बिड अडिeu टुडे and I'll meet you again another day with another new recipe which will be nice, simple and home style. Till then, all of you take care, be happy and healthy. Bye bye.